सभी को नमस्कार. I welcome you all for this alternate treatment, taking care of our health using a technique called Reiki healing without using any medicines, any external source or without any external aids. With our own hands, we are going to heal our body or anything under the sky can be healed using this Reiki healing. So most of the people are not aware what is this Reiki healing. So the big question comes when there are so many types of treatments available. How come such things are not coming, are not popular? That is the first question comes to all of us. Keep aside all the things. Let us be open and let us see what is there in that. Then further we will enter into the question answer session. So let us start with Reiki healing. The word Reiki, it is a Japanese word. Actually, if you see, it's a Indian technique. In our Vedas, it is mentioned that there is a Muni called Shuka Muni. That Muni has kept a write-up called Diksha, some Kriyavati Diksha. So they used to heal olden days, but somehow that technique did not pass on to the generations, so it just vanished there. Later on, it emerged from Japan now. So Reiki, it is a Japanese word. The meaning of Re, it consists of two letters. Re means it's omnipresent energy, and Ki means universal power. We can say the present energy available everywhere abundantly is the meaning of Reiki. So using that energy, we are going to heal our body, heal the diseases, heal the functions, heal the animals, heal the plants, heal anything and everything using that energy. So for everything there must be a person who has to bring it to the public. So this great person known as Mikao Usui, a Japanese doctor, is an allopathy doctor in fact, and he was teaching the medical science to the doctors. So he takes one example of Jesus Christ used to heal the diseases of the people just mere touching their body or even just showing hands towards their body. He used to heal the persons. Then one doctor asked, "Sir, in that case, why the medical science has come up? How is it possible? Can we believe it that it is such a technique exists on the earth that just by touching we can heal?" Doctor says, yes. When Jesus Christ says, and there is a mention in the Bible, then we must believe it. The doctor says, "Sir, we are science students, we cannot believe. We want authentic proof. Or anything you can tell us, you can convince us that such thing is possible. Healing, is it happening? You show us." Then that day this person comes home and he thinks, what that student was asking is right. We have heard and just I told them, but it should be thought of. Why can't we do a research on this and find out, is it really possible to heal or not? So then he started his journey. That time he was not knowing that this is the Reiki or there is a system exists. So he comes to India. He didn't find anything. Then he goes to Tibet. There also he didn't find anything. Then roaming all over, then he resigns his job and he is going behind this to find out what is that which we have to heal ourselves. How is it possible? Then finally again he goes back to Japan And somewhere he get in Tibet, he gets some of the monks, gives him some hints
that it is a possible. We have to do a lot of meditation and self-cleansing if we do, so it is possible. We can do it. So then this man, he goes, he decides, because he doesn't know now, there is no guru to teach what is that. Some glimpses he has got that there is such thing exists. Now he has to invent. So what he does, he goes to a mountain in the Japan and he sits on the top of that mountain and he commits himself to the nature that, see, such an energy, now you are the guru. I don't have any person to guide me. So I believe that it is possible. So I will do meditation. I won't do anything other than meditation. I will sit here, and if I am not getting that energy, I will end up my life here. But I will not go from here. So he starts meditating and he decides himself to do that for 21 days. So how to count the 21 days? He keeps 21 stones one side of his leg and he sits. One day passes, he moves one stone from left to right. Like that, 20 days passed, nothing happened. He didn't get anything. He didn't get any experience. Day by day, his body went on deteriorating. And 20th day, it was almost to the collapsing stage. So then he decided last one stone is remaining. So what is to be done with this? Let us see tomorrow. So 21st day, when sun was rising, a light emerges from the sun and just it travels towards his body. It hits his forehead and he becomes unconscious. Just like one shooting light comes, enters his body and he becomes unconscious. Then after afternoon, maybe some 3-4 hours, he himself wakes up and he sees that how he was first day when he climbed that mountain, what was the energy he was carrying, and how enthusiastic, how interesting, how healthy, how energetic. Same energy, he wakes up and he was surprised. Because just previous day, he was not able to even to stand up. That situation, now he has become a normal person. Then he gets means. Now something I got it. So that he calls as a Reiki. Oh, Reiki has come to me. Means I got the Reiki power now. Now that Reiki has empowered me. So it got me back my health. So then with enthusiasm, he starts coming down the mountain to tell the people that, yes, he discovered it. He can heal the people. So when he was coming down, his toe hits to a stone and small wound. The toe got cut and blood start oozing out. So immediately what he does, he just catches with his toe, right hand, he catches his toe like this and sit there for just 4-5 minutes. Then he observes, when he removes his hand, the blood is stopped. That is natural. Blood anyway it will stop. But the pain, what he was feeling, that was not there. Then he was surprised. Oh my God, then it healed. My wound is healed. I am not having a pain. Though there is a cut mark, but the pain is subsided. Then it gets confirmed. Yes, now I can heal. Then he rushes to his village. Then he calls all the people. He goes to that college and he says, yes, now you come on, tell me what is your problem. I will solve. So somebody has got a fever. He goes and keeps his hand. Then they get cured. So like that, then he discovered, yes, this is the Reiki. Now we can heal with our hands. That is how the healing process started. Now he made up. Seeing at his locality, he started healing the people. So many people will be there. So all these diseases, he started healing. Then people start coming to him without medicine. He started healing. So he gave the name. So 21 days he has to do the practice. So what are all the things to be done? Nothing is required. No special thing. Only thing what we can say is the easiest, simplest, and without any restrictions, anything is there under the roof, that is Reiki. So with our hands, and no need to believe anybody, and you yourself will experience it. So our hand represents 5 elements, thumb represents fire. These are all the 5 fundamental elements with which our body is made up of. So thumb is fire, index finger is air, middle is sky,
Earth is ring finger, water is the last finger. So this is the natural nature has given to the human beings, that these our fingers represent that. So you might have seen when we go to the urinals, we used to raise our hands like this in school. In no school, no parent or nobody has taught, just it will raise the hand. So that represents water element. So this is how the healing process starts. So in this Reiki, what we do, there is one prayer. In everything we have a prayer. So here also we have a prayer of 5 sentences. The student who wants to learn the Reiki, this is the prime and most important and powerful thing he has to undergo is, he has to utter these 5 sentences. I thank myself. So myself I am thanking. I thank Reiki. I thank my teacher. Teacher can be anybody whom you adore as a teacher. And I thank my parents. And I thank my Lord, whom you believe that. So this is the only simplest prayer. Tell me anything such a simple thing, prayer. It is simple. I think within 2 minutes you will memorize this. And this is the only thing to be told. Nothing else. No need to study voluminous books or remember anything by parting. Nothing. Just simply we have to close our eyes and say these words. So this is the Reiki prayer. Anytime, whether you are receiving the Reiki or we are giving the Reiki, this is the prayer we have to say. Then, more important is than the prayer is this. This is the one which plays major role in Reiki healing. That these are, we call it as principles of Reiki. So every day after waking up and just before going to the bed, we have to say these principles. So that what is just for today I will be in attitude of gratitude. It is not mere saying, it has to be brought into the practice so that you can feel more of Reiki existence or Reiki power. So you will feel, just for today I will be in attitude of gratitude, means कृतज्ञता भाव से मैं रहूँगा हर चीज़ के लिए. कुछ भी लो आप, जैसे ही सुबह उठा तो आँख खुलते ही लगता है यार हम इतना घर, अच्छा घर है हमारा, थैंक यू हाउस. अरे मैं बेड, अच्छा बेड में सो, थैंक यू बेड. Everything, for anything, if you go to the bathroom, you see tap, beautiful, array, water is coming, thank you water, thank you. Anything you see, you have to say thanks. That is the meaning of it, living in attitude of gratitude. That is for today, just for today. Tomorrow I don't know, today I will live in attitude of gratitude. And just for today I will not worry. हम बोल देंगे आज हम चिंता नहीं करूँगा. Just for today I will not be angry, मैं गुस्सा नहीं करूँगा. बोलना चाहिए मुंह से. Just for today I will do today's work honestly. आज का जो भी मेरा काम है मैं प्रामाणिक से करूँगा. Just for today I will be kind and respectful to all creations. चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, पौधा हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, उसके प्रति मैं गौरव भाव से देखूंगा जो भी है उसको. So these are all the principles. How deep we are keeping these principles in our life, that much powerful we will be. And what are the advantages of Reiki healing? इससे क्या 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 हमको फायदा मिलता है? Reiki is a self-healing method. You need not depend upon anyone and anybody. कोई किसी के ऊपर आप depend होने का जरूरत नहीं है. This is my personal experience. I will share with you later on. You can heal yourself. खुद तो हम heal हो ही जाएंगे और दूसरों को भी हम heal करेंगे. Most of the diseases can be healed by Reiki. There is no such disease which cannot be healed by Reiki. And proven records, not only India, all over world now it is going on. You can Google it out and you can see. Anything can be healed, right from cancer to AIDS can be healed. In many cases you get positive results within 21 days. 21 days में most of the times में आपको experience होने लग जाता है. To heal, you need not be expert human anatomy. You need not study voluminous books. आपको पता जानना जरूरी नहीं है किधर क्या हो रहा है. अभी दर्द हो रहा है तो कहाँ दर्द हो रहा है वहाँ हाथ रख दिया तो बस उतना ही है. उसके अलावा और कुछ जानने का जरूरत नहीं है. You can heal a person who is in another city or country. This is the beauty of the Reiki healing. So touch healing, it's the initial stages. You have to touch and heal. When you learn advanced stages, you can heal from anywhere, anybody, in any distance. That is called distant healing.
So sitting here itself, you can heal the person who is in other place or other country or even other planet, you can say. So you can combine Reiki healing with other medical treatments. This is another beauty of Reiki. So अभी क्या एलोपैथी ले रहा है तो होम्योपैथी आप मिक्स नहीं कर सकता है, होम्योपैथी ले रहा है तो नेचुरोपैथी आप मिक्स नहीं कर सकता है, ये दोनों ले रहा है तो आयुर्वेद. देयर इज ए वन रिस्ट्रिक्शन इन ऑल द सिस्टम्स, वेयर एज रेकी हैज गॉट ए, आप क्या जोकर होता है ना कार्ड्स में, कहीं भी आप फिट करो. सो एनी ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग, फाइन, गो अहेड, नो नीड टू स्टॉप, डू अलॉन्ग विथ दैट ट्रीटमेंट रेकी, देन इट वर्क्स वंडर. So faster results will be obtained using, you can combine the Reiki with any type of healing systems. You develop immunity and resistance against all diseases. एक तो डिसीज क्यूर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, आई एम फाइन, मैं ऑल राइट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हील करने जैसा कुछ है ही नहीं है. सो इन दैट केस इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस. यू कैन सेव लॉट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस. ये तो खर्चा कुछ है, क्योंकि हमको हील कर रहा है तो कोई एक्सपेंडिचर आता ही नहीं. रेकी ब्रिंग्स हार्मोनी एंड हैप्पीनेस इन लाइफ. ये तो इतना अच्छा हो जाएगा, आपको इतना हैप्पीनेस फील होने लगेगा दैट यू विल एक्सपीरियंस. टाइम रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस रेकी इज वेरी लेस. डेली 75 मिनट्स फॉर 42 days, देन जस्ट 30 मिनट्स डेली. वो 42 days इसीलिए है कि देयर विल बी 2 cycles ऑफ 21 days. 21 days का 2 बार करना है, तो दैट इज एवरी, वी हैव गॉट different parts in our body. So every part we have to keep 3 minutes our hands. So that time takes 75 minutes. So later on it will be just 30 minutes. एक मिनट आप हाथ रख दिया, उतना काफ़ी है. Reiki guides and leads you towards spiritual path. ये एक कहो है ना, हम कुछ ढूंढने निकले और दूसरा ही कुछ हमको मिल गया, ये ऐसा है. हेल्थ को ढूंढते ढूंढते जाके we'll end up into some other thing, very valuable things. Learning and healing is very simple process. No complicated procedures are involved. कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, कोई भी कास्ट, रिलीजन, बड़े छोटे, लेडीज, जेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Anybody can do it. No restriction on the food intake like veg and non-veg. No limitations. This is the wonder and beauty of the Reiki, is no limitations for Reiki healing. Anything can be healed from anywhere. For example, human beings, animals, plants, machineries, events. कुछ इवेंट आप परफॉर्म कर रहा है, उसको आप हील कर सकता है. Yes, machineries. Then situations. Machines means any machine you can heal. Then situations, relations. कुछ relations खराब हो गया, उसको heal कर सकता है. So this healing process, how it takes place. So as I was mentioning, energy is coming. Now we think that by food only we are getting the energy, but not only food. Along with the food, energy is coming from the cosmos. It's entering our body. So there are certain chakras. They used to call it as nadis also. So through these chakras, the energy is entering and it is emitting from our body. So most of the energy enters from crown of the head, human. That is called Sahasrara chakra. From there the energy enters, it travels through our body and it comes out from different chakras. These are all, if you correlate with medical terms, these are all the glands. Secretion, this ductless glands जो भी है हमारा, pituitary, pineal, pancreas, testicles, ovaries, वो सारे को ये correlate करता है. In deep, if you study, you will understand those things. Again, don't get confused. These are all necessary. It's only for information I am giving. What is required to learn Reiki is just 21 days practice, keeping the hand. That's all. Nothing. These are all how theory part. बट ये जानना जरूरी नहीं है कि ये आप जानेंगे तभी आपको रेकी वर्क होगा, तो भी नहीं जाने तो भी वर्क होगा. थोड़ा रूल्स है, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कह सकते हम लोग. ये रूल्स के बिना करेंगे तो उससे क्या फायदा होता है. दैट रेकी पितामह उसुई का एक कोट आता है इधर. व्हेन ही लर्न एंड ही स्टार्टेड टीचिंग हीलिंग, सो ही वेंट टू ए beggars colony and he saw so many beggars begging there. Then he thinks, if I heal them, make them all right,
they will not beg, so they can earn their bread and butter. So he teaches them Reiki and he makes them all right, and he feels that now they are healed, now they will earn their bread, they will not do the begging. So he further goes to the other areas. So after some time, maybe a year or two, when he goes back there and he saw the beggars are again begging there, then he went and see, what went wrong? Then he asked them, why are you begging? He said, no, it's easy now, why to earn and all, it is good. Then he thinks, what went wrong? I taught them properly, but why they are begging? ऐसा क्यों कर रहा है? Then उसको लगता है, then he makes a rule, because वो लोग पूछा नहीं था, हमको रेकी सिखाओ करके वो बताया नहीं है. तो he himself went and taught them, वो भी free of cost, कुछ पैसे नहीं लिए वो. So he makes a rule, it should not be, मुफ्त में सिखाना नहीं है रेकी किसी को भी. सिखाना है तो कुछ पैसा लीजिए, जितना उनका कैपेसिटी है. ऐसा नहीं है कि आप कमर्शियल वे में उसको करें, तो कुछ भी फ्री में नहीं देना है. वो पूछे बिना देना नहीं है. मतलब किसी को जरूरी है तभी वो पूछना चाहिए, तभी आप देने का. अदरवाइज इमरजेंसी केस में कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया, तब आप कर सकते हैं. एक्सेप्ट इमरजेंसी केस, मतलब फेंट हुआ आदमी है, वो पूछेगा नहीं ना आपको रेकी करो मुझे बोल के, तब आप कर सकते हैं इच्छा है तो. रेकी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बैड, अनट्रूथफुल, अननेचुरल, डिसऑनेस्ट एक्ट और एक्टिविटीज. मतलब किसी को कुछ हार्म करने के लिए इसको यूज नहीं करना है. ऑफकोर्स वो होगा नहीं है, रूल तो बनाया गया है, अगर आप ट्राई भी करेंगे तो वो होता नहीं है. वो हमारा बहुत सारे रेकी मास्टर्स है, रेकी हीलर्स हैं, सभी का एक्सपीरियंस यही है. मैनी ऑफ माइट हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, it will not work out, but still they put a rule that it should not be misused. So it should be used to be avoided healing on commercial basis. मतलब कोई भी ऐसा आपको रेकी सेंटर्स नहीं मिलेगा कि वो पैसा लेके आपको ट्रीटमेंट कर रहा है. द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इज अपने आप को हील कराना सिखाते हैं हम लोग. ऐसा क्लिनिक ओपन करके अरे सब लोग आओ इधर हील करके जाओ और पैसा हमको दे दो, ऐसा नहीं है. ऐसा भी कर सकते हैं, बट नॉट ऑन कमर्शियल बेसिस. अगर आप थोड़े लोग रोजी रोटी नहीं है, मैं क्या बोलते हैं उसको, जितना उसको जरूरी है या उसका दूसरा कुछ चल रहा है एज ए सोशल सर्विस, हाँ भाई वो मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए, वैसा इवन सम रेकी हीलिंग सेंटर्स आर देयर, दे डू द ट्रीटमेंट आल्सो टेकिंग द मनी. मेनी पीपल आर डूइंग दैट, बट नॉट ऑन अ कमर्शियल बेसिस. दे डू एज ए लाइक NGOs or social work, they do it. So this is what about the Reiki. Thank you. Now you will get a doubt ki still, though it appears to be very easy, still we feel that it should be experienced. Anything theory is okay, but is it really working, or is it really exists like that? That will come to know when we personally experience it. So now let us take some 10-15 minutes session of healing. Now what I do the Reiki to all who are sitting here, and during that time you just keep observing yourself, and after 10 to 15 minute session you have to tell me whether you experience anything can be experienced or need not be experienced also. So it up to the receptivity of individual and connectivity of the individual. So I request now all of you to just be relaxed, just be open minded, and I will keep giving the instructions. Just follow my instructions and be relaxed. Don't keep any what do you call reservation in the mind. Means just like a just जी, मोबाइल थोड़ा साइलेंट या ऑफ कर दिया तो बेटर है. बेटर इज स्विच ऑफ द मोबाइल्स, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो इट्स ओनली जस्ट 10 मिनट्स. हाँ, आइज क्लोज करना पड़ेगा, बोलता हूँ मैं. आंखें बंद करके रखेंगे. अगर किसी को बहुत तकलीफ हो रहा है देन यू कैन कीप इट ओपन एज सच, दैट इज ऑल्सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. So that for better experiencing, let us switch off the mobiles. Sit in a very relaxed way. आपको जैसा चाहिए वैसा बैठ लीजिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओनली थिंग इट शुड बी अ कंफर्टेबल पोस्चर फॉर यू. सो जेंटली क्लोज योर आइज. आंखें बंद कर लीजिए. जस्ट क्लोज योर आइज.
एक लंबा सा श्वास लीजिए, धीरे से, बहुत धीरे से, हल्का सा आराम से लंबा सा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए. जस्ट स्लोली एक्सेल. इनहेल, एक्सेल. Inhale, exhale. जो भी आपका मन में विचार आता रहता है आने दीजिए, आप उसको कुछ भी डिस्टर्ब मत कीजिए. जस्ट आप फील कीजिए आप रेकी हीलिंग यू आर अंडर गोइंग ए रेकी हीलिंग. उतना आप ध्यान में रखते हुए जस्ट आराम से बैठ जाइए, कुछ नहीं करना है. जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक आपका आंखें बंदी रहना चाहिए. Let the eyes be closed.
जस्ट रब योर बोथ द पाम्स, अपना दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ लीजिए, फील द हीट, जैसे वो गर्म लगने लगता है अपना आंखों के ऊपर हाथ रखिए, जस्ट कीप बोथ द पाम्स ऑन योर आईज, सो स्लोली विथ वाइपिंग ओपन योर आईज। ओके, अभी हमने जस्ट 10 मिनट्स आपको हीलिंग किया। आप ऐसे कितना लोगों को बॉडी में गरम जैसा लगा? कैन यू रेज योर हैंड्स? किसको गरम, मुझे गर्मी गर्मी महसूस हो रहा था, ऐसा एक एक्सपीरियंस होता है वो एक। और किसी को ऐसा लगा कि एक झटका लग रहा है, मतलब वाइब्रेशन, बॉडी वाइब्रेट हुआ जैसा किसी किसी को होता है, वो उस टाइप का एक्सपीरियंस हो सकता है। और किसी किसी को ना नींद आ गया, मुझे नींद आ गया, नींद आ जाता है, आंखें बंद किए हुए रहते, बाद में पता नहीं है, जब मैं आंख खोलने के लिए बोलता हूँ तभी मुझे होश आया, ऐसा एक एक्सपीरियंस हो सकता है। और किसी किसी का आंखों में आंसू आने लगता है, आंसू आ जाता है, वो एक एक्सपीरियंस होता है। और किसी को ना खोया हुआ, मतलब नींद भी नहीं है, जागा हुआ भी नहीं है, ऐसा वाला एक स्थिति में भी इसका अनुभव हो सकता है। और किसी किसी को हेडेक आ गया है, मुझे सर दुखने लग गया है, वो भी एक्सपीरियंस हो सकता है। सो किसी को कुछ, मैंने जो बताया इनमें से कुछ तो अनुभव हुआ, किसी को पानी, आंख में पानी आ गया, हेडेक आया आपको, हाँ आपको मैडम हेडेक आया, हाँ। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक को ये पहली बारी, मतलब मैं ये चेक करना चाहता था, मतलब ये जो हीलिंग प्रोसेस है और रियली एग्जिस्ट है और इट्स ओनली आवर इमेजिनेशन करके अभी आपको महसूस हो गया। मतलब बैठा हुआ 10 आदमी में 4 लोगों को फील हो रहा है, मतलब इट इज हैपनिंग। ऐसा नहीं कि दूसरों के ऊपर नहीं हो रहा है बट उनका ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा है वो, बट इट इज हैपनिंग। मीन्स हम लोगों को यही सिखाया जाता है, वो इसमें फर्स्ट तो एक हीट फील होता है जनरली। वो अभी जो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग, जो सबसे तेज हीलिंग जो है उससे क्या बॉडी एकदम गरम गरम फील करने लगता है। अगर आप एसी रूम में भी, इवन हमको जो ट्रेनिंग देता है हमारा जो मास्टर्स है, तो एसी रूम में कंडक्ट करता है, बट स्टिल यू फील हो, इतना एसी रूम में भी आपको गर्मी फील होगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी। और एक रेकी हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है देखने के लिए, और एक टूल है हमारा रिलैक्सेशन। मतलब जैसे ही हम रेकी हीलिंग करने लगता है तो पेशेंट आदमी जो भी है वो सो जाता है, दे विल गेट इनटू द स्लीप, इतना डीप स्लीप, मतलब वो कितना भी फ्रेश रहने दो, जैसे ही वो सोया है। इसका मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब हमने सीखा इसको 2000 में, इन द ईयर 2000 आई लर्न रेकी। जैसा मैं अभी लेक्चर दिया, ऐसा एक लेडी आए थे, हमारा राम मूर्ति साहब बोल के एक स्टेशन डायरेक्टर थे, उनका कोई रिलेटिव आए थे आंध्र प्रदेश से, नोटिस बोर्ड में लगाया था रेकी हीलिंग। हमको भी ऐसा इंटरेस्टिंग ऐसा पड़ा, तो कुछ भी इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब नया थिंग मुझे सीखने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या है बोल के। ऐसा इंट्रोगेटिव माइंड भी बहुत रहता है मेरा, अरे ऐसा है तो फिर कैसा पॉसिबल है विदाउट एनीथिंग हम लोग हील कर सकता है। तो ज्वाइन किया वो लोग 3 दिन में, तब वर्कशॉप चलता था, सो 3 दिन हम लोग ज्वाइन किया। कुछ 300-500 रुपीज़ कुछ फीस था, वो फीस पे किया। अराउंड 30-40 पीपल को टीच किया, ई टाइप क्वार्टर्स में, किसी का क्वार्टर्स में हमको बिठा के उधर ही टोटली इवन डिस्टेंट हीलिंग एवरीथिंग हमको वो सिखाया, एक्सपीरियंस भी करवाया, देखो ये होता है करके। वो बैठे बैठे बॉडी पेन होता था, तो एंड में हम लोग हील कर दिया, तो एकदम सुबह हम क्लास में आया तो कितना उतना फ्रेशनेस फील किया, तब कंफर्म हो गया यस ये वर्क होता है, रेकी है बोल के। देन बाद में ये 20 अभी 42 डेज है ना, ये प्रैक्टिस करना है। 3 दिन का क्लास तो खत्म हो गया, उसके बाद वो कर नहीं पाए, एज यूजुअल टेक इट इजी, अरे आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे कर करके कितना गया, 2 साल गया। वो टीचर हमको पूछती रहती थी, अरे आप किया क्या? नहीं मैडम करते हैं, अभी करेंगे, वो छुट्टी है, चतुर्थी है, न्यू ईयर है, ऐसे बहाने करते करते 2 साल गया। 2002 में फिर और एक बार आए वो, मतलब उसमें से थोड़ा लोग कर दिया था सिंसियरली, लेकिन मैंने नहीं किया था, मैं 2 साल नहीं किया था। तो फिर सेकेंड टाइम आए, तब भी वो फिर पूछने लगा, सबको बुलाए, हम ऐसा चुप चुप के जा रहे थे, अरे यार हम किया नहीं, कैसा बताएंगे। फिर भी वो बुलाए और एक हमको रिफ्रेशर जैसा डोज दिया। फिर 2002 में मैंने
सक्सेसफुली कंप्लीट किया। वो कोर्स कंप्लीट, प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली मैंने नेक्स्ट सेकेंड डिग्री किया, फिर थर्ड डिग्री किया, डिस्टेंट हीलिंग वो सब स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग, इतना इंटरेस्ट आ गया मुझे 2004 में, तो एकदम मेरे अंदर वो छा गया, वो हीलिंग करने लग गया। उसके बाद फिर टीचर्स ट्रेनिंग भी किया। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, बट इतना फुल फ्लेज्ड में मैं टीचिंग कभी करता नहीं था। जी हाँ, घर से ये कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तब तो आके सिखाते थे, लेकिन आजकल इतना एडवांस हो गया है ना, इवन कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है, वर्कशॉप भी अटेंड करने का जरूरत नहीं, ऑनलाइन में भी टीचिंग होता है। बट एक बार उसको जस्ट मिलना जरूरी होता है, वंस वी हैव टू मीट द मास्टर, एक बार मिलने का रहता है। तो इसका एक ऐप भी है, मैं शेयर करता हूँ, आप वो ऐप डाउनलोड करके कर सकता है। तो जैसे ही हम लोग इसको सीखा था, अभी प्रैक्टिकली अपने उसमें देखा मशीनरीज, वी कैन हील द मशीनरीज। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब हम लोग प्लांट में काम करते थे, तो मॉर्निंग मैंने कुछ काम करने के लिए अर्जेंट, सुबह हमारा ड्यूटी 9:30 को रहता है, बट मैं 8 o'clock बस में गया, जाके उधर देखा तो मैं फाइलिंग कैबिनेट होता है ना मतलब गोदरेज का, उसका चाबी भूल गया था। चाबी लेके नहीं गया, लेकिन काम करने के लिए जल्दी गया। अभी तो अरे वेस्ट हो गया ना, चाबी भूल गया, अभी क्या करेंगे, फिर वापस आना तो जरूरी नहीं है। तो 9:30 को घर में फ़ोन करके बोला चाबी भेजने का है, 9:30 तक वेट कर रहा था मैं। तब भी रेकी सीखा था, तब ऐसा याद आया, अरे वो लोग बोला था ना ये मशीन को हील कर सकता है, तो ये चाबी ओपन कर सकता है क्या, मैं रेकी करके बिना चाबी लॉक ओपन हो सकता है क्या, देखो ट्राई करते बोल के। वो फाइलिंग कैबिनेट के इधर वो लॉक रहता है ना, उसके ऊपर ऐसा दोनों हाथ रख के, और इतना हाइट में रहता है ना, ऐसा हाथ रख के रेकी किया, उसको कर रहा था, करके खींचा 2 बार, वो खुला नहीं है, फिर भाई बढ़ गया। ऐसा ही वो बोलता है लोग, वो थोड़ी कूदने वाला है बोल के बैठा। तब वो एक इलेक्ट्रिकल सेक्शन था हमारा ऑफिस का बाजू में, उधर एक वो स्टोर कीपर रहता था शिवतानु बोल के, अभी नहीं वो रिटायर हो गया। वो ऐसा मेरा ऑफिस पैसेज से जा रहा था, वो मुझे, हम लोग 9:30 को आता ना, वो क्या गुरु आज जल्दी आ गया, ऐसा पूछा। मैं बोला हाँ यार थोड़ा जल्दी आया था। वो क्या करे, आके भी कुछ फायदा नहीं है, मैं चाबी भूल गया हूँ, आपके पास कुछ टूल है क्या, इसको मेरे को फाइलिंग कैबिनेट खोलने का है। अरे नहीं यार वो कैसा खोल सकता है, वो गोदरेज का है ना, वो खराब हो जाएगा। बोला नहीं देखो कुछ ट्राई करो ना, आप तो स्टोर वाले, आपके पास बहुत कुछ जुगाड़ होता है। बोला मैं, तो आपके पास क्या है, बोला कुछ टूल है क्या, स्क्रू ड्राइवर, कटिंग पे कुछ तो है। मैं बोला तब मैं दोपहर को फ्रूट्स खाता था, मैं बोला मेरा पास चाकू है, फ्रूट्स काटने के लिए चाकू रखा था, ठीक है चाकू दे दो। बोला वो चाकू लिया, वो फाइलिंग कैबिनेट का जो ड्रॉवर रहता है ना, वैसा वो गैप रहता है, ऐसा गैप में वो चाकू रख के थोड़ा ऐसा किया, देखो और ठक से वो ड्रॉवर ओपन हो गया। फर्स्ट लॉकड है, 4 होता है फाइलिंग कैबिनेट में, सेकंड वाला ओपन हुआ और मेरा फाइल सेकंड में ही था। ऊपर का खींच रहे हैं नहीं खुल रहा है, नीचे का भी नहीं खुल रहा है, बीच वाला सिर्फ ओपन हो गया और लॉक भी बाहर नहीं आया। तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे ये तो वर्क हो गया, मेरा जो मतलब था वो पूरी हो गया ना, वो कैसे भी हो, लेकिन मतलब रेक इज वर्किंग। तो स्ट्रांगली मुझे ये हो गया यार इसको तो छोड़ना नहीं है। तभी से दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरा किताब भी है, लेकिन वो छपेगा मेरा रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि इतना लंबा खजाना हो गया ना वो एक्सपीरियंस का। वो एक्सपीरियंस बोलते लग गया तो भी दिनों महीनों लग जाएंगे इतना। एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल। 25 जी वही हेल्थ का ही बोल रहा हूँ। जो भी रेकी सीखने के बाद 2000 से लेके 2022 तक मैंने कुछ मेडिसिन लिया है, तो वो मेडिसिन है 2 कोविड वैक्सीन। इसके अलावा कुछ भी मैंने मेडिसिन नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि मुझे बीमार नहीं पड़ा, हेडेक आता है कभी कभी, फीवर आता है, बट आई मैनेज विद द रेकी। नॉट ओनली मी, इवन माई फैमिली मेम्बर्स। बहुत हमको तकलीफ हो गया तो हम होम्यो मेडिसिन लेते हैं, इवन बच्चों को भी। कुछ भी हम लोग मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन में तो आप मेरा फाइल देख सकता है हॉस्पिटल में, वो कुछ भी हमने मेडिसिन नहीं करता। सो आई डू ओनली विथ रेकी। एक तो मेरा माइग्रेन हेडेक था मुझे, एंड ऑलमोस्ट 99% क्यूर्ड। एक्चुअली मेडिकल साइंस में माइग्रेन हेडेक को क्यूर नहीं है, दे डोंट से एनी मेडिसिन फॉर दैट। वो मेरा हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एनर्जी तो आप पूछो मत, इतना एनर्जी रहता है मेरे पास। अगर मैं 2-2, 3-3 दिन भी अगर नहीं सोया, स्टिल आई कैन मैनेज। ट्रैवल में
ट्रैवल भी करता हूँ, और मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है जनरली 9:30 10 o'clock मैं सो जाता हूँ, तो आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 to 4 o'clock उठ जाता हूँ। तो कितना सोता हूँ मैं, हार्डली मैं 5-6 आवर्स में, बट इतना एनर्जेटिक रहता हूँ, आप पूछो, मेरा ऑफिस वाला तो जानते ही है। वो ट्रैवल करो, घर में रहो, काम करो, जैसे सुबह ऑफिस जाता हूँ शाम तक भी मेरा वही एनर्जी बना रहता है। तो अलॉन्ग विथ माई हेल्थ इवन और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। जैसे ही मैं सीखा था, इधर ही एक है वो आदमी, अभी भी है, वो छोटा बच्चा था उसका, मे बी 4 साल का। तो साइड में मैं डिस्कस करता रहता था, अरे मैं रेकी हीलिंग किया हूँ, डिस्टेंट हीलिंग, मैं घर में बैठे बैठे आपको हीलिंग कर सकता हूँ। अरे ऐसा है क्या? वो क्रिश्चियन था, अल्फोंसो बोल के। उसका बेटा को कान दर्द होने लग गया रात को 1:30 बजे। उन्होंने कॉल किया मुझे, सर ऐसा बेटा रो रहा है, कान दर्द हो रहा है करके, आप कुछ बोला था ना, वो रेकी हीलिंग कर, वो पेन कम कर सकता है क्या? पूछा। हाँ कर सकता हूँ, आप कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए। बोला ठीक है मैं करता हूँ, आप 10 मिनट के बाद मुझे फ़ोन करके बताना क्या हुआ है करके। तो जैसे ही मैं हील करने लग गया, 10 मिनट किया, ये करते करते क्या होता है, हीलर भी रिलैक्स होता है एंड हीलिंग जो पेशेंट है वो भी रिलैक्स होता है। हीलर एंड हील्ड दोनों को रिलैक्सेशन हो जाता है। एंड टाइम है नाइट 1:30, तो मैं भी सो गया, वो भी सो गया, उसको भी नींद लग गया। फिर मेरे को आधा घंटे के बाद नींद खुली। मेरा खुलने के बाद मैं देखा, अरे तो ये तुम बताया नहीं है फ़ोन करके। फिर मैंने ही कॉल किया उसको, अरे क्या हो गया, तुम 10 मिनट के बाद कॉल करो बोला था, आधा घंटा हो गया तुम फ़ोन नहीं किया। मैं बोला सर आप नींद में होगा इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना है। अरे वो छोड़ो, लड़का के क्या हुआ? सर वो 10 मिनट में सो गया, ये तरह रो रहा था, लिटरली क्राइंग बॉय हैज स्लेप्ट। और मैं फ़ोन किया तो घंटी बजने के बाद भी वो उठा नहीं है। बाद में वो बोला इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना है बोल के, सुबह मैं इतना एंथुसियास्टिकली वेट कर रहा था आपको बताना है ये हो गया, कैसा हुआ सर, ये कैसा सो गया हो? अरे मैं क्या बताऊँ, तुम ही तो देखा है, तो यू आर ओनली टेलिंग दैट ही स्लेप्ट। वो सो गया। तो वो मतलब हेल्थ इश्यू में दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस, मशीन में वो दूसरा एक्सपीरियंस। ऐसा बहुत सारा है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है ना। और एक 5 वीडियो और एक बताता हूँ, ये अभी हेल्थ का बताया, मशीन का बताया, और एक इवेंट का बताता हूँ। मतलब मैंने बोला था फंक्शन या इवेंट भी आप फील करने का है। तो एक उसका इंटरव्यू था, एक आदमी का इंटरव्यू था, एमपीसी में इंटरव्यू देने जा रहा था वो। उसको भी मैं बोला, साइड में जो भी मेरा कॉन्टैक्ट में रहता है, मैं ज़्यादा तो नहीं बट एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो देता रहता हूँ, ऐसा एक है रेकी हीलिंग बोल के। तो वो लड़का को भी इंटरेस्ट आया था, सैयद हरून उसका नाम है। वो एसओसी इंटरव्यू के लिए गया था, वो कल्पकम में इंटरव्यू था। उसको मैं बोला था ऐसा मैं इवेंट भी हील कर सकता है, या बर्थडे हो या कुछ फंक्शन हो, इंटरव्यू हो, उसको भी हम हील कर सकते हैं, या कुछ मीटिंग है उसको। वो बोला ऐसा है तो मेरा इंटरव्यू को आप हील करेंगे क्या? पूछा। हाँ करेंगे, कब है, डेट सब नोट करके लिया। और उसको बोला जैसे ही आप उधर जाएगा ना, इंटरव्यू रूम के अंदर जाने से पहले मुझे थोड़ा कॉल करके बोल दो ताकि मैं हील कर सकूँ आपका। वो बोला ठीक है सर करूँगा। डेट मुझे भी याद था। उस डेट के दिन हमारा इधर ऑडिटोरियम में कुछ फंक्शन चल रहा था, तो मैं जाके वो फंक्शन में बैठा। अराउंड समवेयर 1 o'clock तक वो फंक्शन चल रहा था। वो लोग बोला कुछ लेक्चर था, तो वो लोग बोला सभी मोबाइल ऑफ कर दो, जैसा अभी मैं बोला ऐसा मोबाइल ऑफ करो बोला। तो मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। और जो उधर इंटरव्यू के लिए गया, गेट में उसका मोबाइल लिया गया है, एनपीसी में मोबाइल अलाउड नहीं है। वो मोबाइल, उसका मोबाइल बाहर, मेरा मोबाइल ऑफ, ये सीन। फिर वो गया इंटरव्यू हॉल के अंदर जा रहा है, तो बाहर खड़ा होकर पूछा, अरे उगी साहब बोला था मोबाइल फ़ोन करो, अभी मेरा पास मोबाइल ही नहीं है। ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ यहीं से, सर बोल रहा हूँ मैं इंटरव्यू रूम के अंदर जा रहा हूँ, लिटरली। हाँ ये उन्होंने आके मुझे बताया, वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो बोल के अंदर चला गया। 1:30 को इधर ब्रेक दिया है ये ऑडिटोरियम में, हमको ब्रेक देके वो बोला अभी 10 मिनट्स ब्रेक है, आप थोड़ा फ्रेशअप होके आ जाइए। तब मैं सभी लोगों को वही है ना, मोबाइल, इमीडिएटली मोबाइल। अरे ये लड़का फ़ोन करो बोला था, वो कब था इसका इंटरव्यू पता नहीं ना, अभी 2 घंटे से मेरा मोबाइल ऑफ है। ठीक है कभी भी रहने दो, अभी मैं रेकी कर देता हूँ बोल के मैं उसको रेकी किया, यहीं बैठे बैठे। रेकी करने के बाद फिर वो लोग बोला फिर मोबाइल ऑफ कर दीजिए। मोबाइल ऑफ हो गया, फिर बैठ गए। 3:30 को हमारा ख़त्म हो गया, आया, फिर उसका भी इंटरव्यू हो गया, वो वापस आया। वापस आने के बाद वो मत डरा, अरे कैसा आदमी यार, तुम फ़ोन करो बोलने से तुम फ़ोन ही नहीं किया। सर कैसे करूँ, मोबाइल छीन लिया हमको, हम कैसा कर सकता है ना, क्या हुआ सर? लेकिन मैं इतना तो किया था सर, मैं बोला था आपको वहाँ खड़ा रह के, मैं इंटरव्यू रूम के अंदर जा रहा हूँ करके आपको बोला था। तो आपको क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ पता चला आपको मैंने बोला हुआ?
मैं बोला कितना टाइम पे, कौन सा टाइम पे तुम इंटरव्यू में गया था? एग्जैक्टली जो मैं इधर हमारा ब्रेक दे के जो मैं हील कर रहा था दैट टाइम एंड जो उधर एंट्री कर रहा था, दोनों इट वाज मैचिंग, हाफ एन आवर इधर उधर का। तब हमको लगा यार देखो, सी विदाउट कम्युनिकेशन इट गेट्स कम्युनिकेटेड। सो ये इसका एक्सपीरियंस था। ऐसे ही रिएक्टर का भी इधर हुआ था, बोलने लगे तो इतना इंटरेस्ट आ जाता ना, वो रुका नहीं जाता है। वो हमारा RB4 कमीशन क्रिटिकलिटी होने वाला था, तब हम हाउसकीपिंग का हम देखते थे उधर। लास्ट डे कल से उधर बंद होता है। सो जाके मैं रिएक्टर एग्जैक्टली कैलेंडरिया के ऊपर खड़ा हूँ, आंखों में आंसू आने लग गया। इतना साल हम मेहनत से किया, कल से इधर कोई नहीं आ सकता है, हम साफ करने के लिए नहीं आ सकता है, भले ही हम सफाई करने वाला है, बट फिर भी हमको लगा है वो रिएक्टर के साथ। ठीक है चलो या अच्छा से क्रिटिकलिटी होने दो बोल के रेकी करेंगे बोल के 11 o'clock इट वॉज, आई स्टिल रिमेंबर। 11 बजे मैं उधर खड़ा होकर रेकी कर रहा था। सेम टाइम पे तब इधर राम मूर्ति साहब था, वो सारे लेडीज इकट्ठा होके 11 o'clock दे डिसाइडेड टू डू द ग्रुप रेकी हीलिंग टू द रिएक्टर। रिएक्टर को हम रेकी हीलिंग करेंगे। वो लोग मुझे मोबाइल कितना ट्राई किया, रिएक्टर के अंदर सिग्नल नहीं आता है। तो 12 बजे उसको फोन आया, अरे हुग्गी जी किधर है आप? हम 11 बजे से कितना ट्राई किया। बोला क्यों ट्राई कर रहे थे? नहीं हम रेकी करने वाले थे 11 बजे को रिएक्टर को, इसीलिए आपको ट्राई किया, तो आप मिला ही नहीं है। तो क्या किया? नहीं हमने कर दिया रेकी। अरे आपने किया, वो मुझे कम्युनिकेट होकर, मैं रिएक्टर के ऊपर ही खड़ा था, उसके ऊपर ही मैं खड़ा होकर रेकी कर रहा हूँ उसको। बोला आपको कैसा पता चल गया? पता नहीं, आप हील कर रहा है ना इधर। सी दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन। टेलीपैथी भी बोलता है आपके, ये कभी कभी किसी को होता है, हम किसी को याद करता है तुरंत उसका कॉल आ जाता है। एवरीवन्स लाइफ ये होता है, या ऐसा नहीं है कि इंसिडेंटली नहीं होता है वो। देयर इज ए कम्युनिकेशन विदाउट जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो वो हमको लगता है अरे कोइंसिडेंटली हो गया, ऐसा कोइंसिडेंटली एक कभी कभी हो सकता है, लेकिन हर चीज कोइंसिडेंटली। अभी इंटरव्यू का बताया मैंने, वो कितना कोइंसिडेंसेस है उसमें। मेरा मोबाइल बंद, उसका मोबाइल बंद, उसको अंदर नहीं दिया, मेरे को इधर मोबाइल ऑफ कर दिया, मेरे को उसी टाइम वो ब्रेक दिया, ब्रेक टाइम पे मैंने हील किया। एक कोइंसिडेंस हो सकता है, इसमें आप देखो कितना सारा कोइंसिडेंसेस है, स्टिल इट इज हैपनिंग। सो ओके, थैंक यू। सो विद दिस जो भी इंटरेस्टेड है सीखने वाला, यू कैन कम एंड लर्न रेकी फ्रॉम मी, एंड इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। वो हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअल, सोशल, जो भी लाइफ है वो सक्सेसफुल रहेगा। इसमें डाउट पूछ सकते हैं आप जी। हाँ रख सकता है, रखें कभी। वो उसको एक 3 hours चाहिए। हाँ 3 hours लर्निंग, आफ्टर लर्निंग 21 days प्रैक्टिस। हाँ हाँ नहीं 8th को ना, नहीं अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। जब मैं मेरा अवेलेबिलिटी रहता हूँ तो नहीं, ऑलरेडी मैंने बीच में तो मैंने ब्रेक कर दिया था। हमारे टीचर्स भी बोला देखो जो भी तुम्हारा पास है यू शुड गिव टू द पब्लिक पीपल। देन आई थॉट, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता हम लोगों को करने का, सिखाने का। देन बाद में नाउ आई स्टार्टेड, अभी ऑलरेडी मैंने क्या वर्किंग कैटेगरी के ऊपर मैं फोकस किया हूँ। माई फोकस इज मेनली ऑन स्टूडेंट्स एंड पुअर पीपल, क्योंकि उसको पैसा, अभी लक्ष्मी नगर में 8-10 लोग ऑलरेडी सीख के वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या मेडिकल खर्चा लगता है ना, हमको क्या फ्री में है, बट उनको नहीं है। ऐसा गरीब लोगों को सिखाने का मैंने, मतलब उनको भी एक 500 रुपये, इसका एक्चुअली 1000 रुपीज़ फीस है। फर्स्ट डिग्री बेसिक सीखने के लिए 1000 रुपीज़ फीस है। उसके बाद अभी एडवांस, एक्चुअली हम जो सीख रहे थे तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, 3A 3B 4 डिग्रीज था। वो 4 करने के 4th डिग्री इटसेल्फ इज ए मास्टर डिग्री, मतलब यू कैन अगेन टीच टू द अदर्स। अब दूसरा रेकी हम चैनल बोलते हैं उसको, वो चैनल के थ्रू एनर्जी फ्लो होता है। तो अभी आजकल क्या, और एक हमारा मास्टर हुबली में रहता है, ही हैज फाउंड आउट वन मोर रेकी दैट इज मोर पावरफुल, एंड इतना भी आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है, एंड सिर्फ फर्स्ट डिग्री एक सीखना है, उसके बाद वो सीख लिया तो हो गया। इतना लंबा 4 डिग्री सीखने का जरूरत नहीं है। दैट आई हैव नॉट लर्न, आई कैन टीच ओनली बेसिक। देन बेसिक के बाद मेरा भी अभी ऑलमोस्ट 4-5 कोर्सेस हो चुका है, तो और एक 2-3 हो गया तो मैं आई कैन टीच दैट ऑल्सो। आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस उसका। तो एनीवे बेसिक सिखाने के लिए तो मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो भी इंटरेस्टेड है आई एम रेडी टू टेक द क्लास, तो कर देंगे हम लोग। ओनली जस्ट 3 hours, बट आफ्टर दैट 21 days आपको करना, लगातार करना पड़ता है, थोड़ा रिगरसली, मतलब ज़्यादा टाइम लेके 1.5 घंटा। उसके बाद तो जस्ट आधा घंटा, हाफ एन आवर। और इसको कुछ भी मतलब कंसंट्रेशन का जरूरत नहीं है। आप टीवी देख रहे हैं तभी करो,
मेरा बेटा का भी दांत दर्द का बताता हूँ, वो ये तो 3-4 साल होने के बाद तो मेरा बच्चे इतना ये हो गया, यूज टू इट हो गया ना रेकी, कुछ भी हो रहा है अरे पापा मेरा ये हो रहा है रेकी करो, वो हो रहा है रेकी करो। उसको दांत दर्द हो रहा था। जनरली टूथ एक ऐसे बंद नहीं होता है, वो एक दवा लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, तभी वो बंद होगा। तो हम गांव के दावणगेरे गए थे, उधर दादी का घर में थे, वो जैसा ये छोटा बच्चा है ना, इतना ही 2-3 साल का था वो, बट बात करता था वो। तो उसको दांत दर्द होने लग गया, वो खेलना रहा था, रोते रोते हुए आ गया, वो क्या हो गया, गिर गया, नहीं 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 वो दांत दर्द हो रहा है, वो रेकी करो बोला। सो मैं करने लग गया, तो वो जोर जोर से, मतलब दर्द सहन नहीं हो रहा है उसको, इतना जोर जोर से रो रहा था। मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस खोने लगा, अरे यार इतना दर्द कर रहा है, चलो हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि सिटी में ही है ना, जाते। और दादी भी बोलने लगे, अरे क्या तुम्हारे रेकी पीकी लगा रखा है, बेचारा वो इतना रो रहा है, चलो हॉस्पिटल लेके चलो। मैं बोला ठीक है चलो चलते हैं। वो तैयार नहीं बेटा, नहीं 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 पापा मैं नहीं जाऊँगा, नहीं नहीं मैं नहीं रहूँगा, ऐसा वो रोक रहा है, अपना रुलावा रोक के बता रहा है, नहीं नहीं आप हीलिंग करो, इनको सब बाहर भेजो, इनको बाहर भेजो, दरवाजा करो और तुम करो रेकी करो मेरे को। तो ऐसे ही किया, सब लोगों को बाहर डाल के बेडरूम में मैं आधा घंटा किया। आधा घंटे सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, अरे क्या हो रहा है अंदर। तो आधा घंटे के बाद वो सो गया। जैसे रेकी हीलिंग का मतलब इफेक्ट, मतलब दे गेट इनटू द स्लीप, वो सो गया, इतना गहरी नींद में चला गया, खराटे मारने लग गया। तो भाई धीरे से दरवाजा खोला, सब लोग भाग के अंदर आए, अरे क्या हो गया, अरे सो गया, सब बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बोलो नहीं बाहर चलो, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है उसको, अरे रो रहा था वो कैसे सो गया, आधा घंटे में कैसे सो गया, अरे सो रहा है ना तुम्हारे सामने ही सो रहे, चलो अभी इधर नहीं बोल के बाहर गए। बाहर जाने के बाद सब पूछने लग गए, अरे कैसे हो गया, ऐसा होता है क्या, वो इतना रो रहा था कैसे सो गया। सभी का वही क्वेश्चन, कैसा हो गया, अरे हो तो गया ना, अभी छोड़ो कैसे भी हो गया। देन दे ऑल गॉट बिलीव, सब लोग सीखा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, दैट इज डिफरेंट इश्यू, बट वो इतना इंटरेस्ट आ जाता है। अभी आपको भी ऐसा ही एक सुन लिया ना, ऐसा लगता है यार करना है, लेकिन क्या थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना सारा बहुत सारा डिफिकल्ट चीज़ों को हम कर रखे हैं, बट ये ऐसा वाला करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं भी बोला ना 2 साल लगा मुझे सेकेंड डिग्री जाने के लिए, उसके बाद अभी तो चल ही रहा है। आज भी आते समय वो हमारा टीचर को भी पूछा, मैं ऐसा एक लेक्चर दे रहा हूँ, वो बोला नहीं दे दो, अभी देखो ऐसा है फ्री में आया हुआ चीज़ है, इसको लोगों को देना चाहिए। सो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी आगे बढ़ाएगा, बढ़ाने वाला, सो सीखने में कुछ ये नहीं है ना। सो जब भी हम जी हाँ हाँ कर सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन, एग्जाम्स का कितना एक्सपीरियंस है मेरे पास, मार्क्स लेके इतना 80 के ऊपर आना है, 90 के ऊपर आना है, सब्जेक्ट पास होना है, प्रैक्टिकल पास होना है, इजी क्वेश्चंस आना है, कैसे डिमांड्स ऐसा वो सब हुआ है। दैट ऑल मैंने लिख के रखा हूँ। तो माई एक्सपीरियंसेस विथ रेकी बोल के एक किताब है, ऐसा बहुत सारा है। अभी क्या रिटायरमेंट टाइम में तो मुझे ऐसा लगता है ड्यूटी से भी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे हम। ओके थैंक यू। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन ब्रेक। हाँ पर्सनली आने का जरूरत नहीं, फोन भी बोल सकते हैं, मतलब कि डिस्टेंट हीलिंग है ना, तो यू नीड नॉट कम टू मी। बेड वेटिंग होता था एक लड़की को, वो स्टॉप हुआ। तो मतलब विथ डिस्टेंट हीलिंग ओनली, मतलब वहाँ बैठे मतलब कहीं से भी है कर सकता है, बट जनरली वी डोंट एनकरेज मी हीलिंग अदर्स। वो क्या है, अगेन यू आर डिपेंडेंट ऑन मी, whether it is Reiki or whatever it is. So I strongly suggest you yourself should learn. ठीक है इमरजेंसी है भाई, अभी सिखाना है, अभी कुछ हमको चाहिए, आई कैन हील इट, बट हम लोग आप ही को सिखा के आप अपने आप हील कर लीजिए, दैट इज मोटो। हर घर में एक भी अगर सीख लिया ना, एवरी वन लर्न्स इन वन हाउस, एक डॉक्टर हो गया ना। सो दैट इज द इंटेंशन। मतलब रेकी का हमारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, इट शुड बी टॉट टू मेनी पीपल देन हीलिंग। ऐसा नहीं कि हीलिंग नहीं करते, हीलिंग भी करते हैं ऑन इमरजेंसी बेसिस, बट वी आपको भी वो 1-2 बार हील हो गया तो यूर से आपको भी लगेगा है ना, वो एक बार हो गया तो अरे हम ही करते, क्यों उसके ऊपर डिपेंड रहना है। बट ऐसा कुछ इमरजेंसी है तो यू कैन कॉल, कुछ भी है या टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ ऐसा केसेस को हील करते हैं लोग, ठीक है हम करते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप रेकी मास्टर्स का ग्रुप ही है, वो ग्रुप में डालते हैं।
इवन रिग्रेशन थेरेपी आपने सुना होगा, मतलब पुनर्जन्म का जो है वो, मतलब पास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ्स क्या क्या था, वो उसके वजह से अभी हम लोगों का कुछ सफरिंग्स रहता है, उसका हीलिंग। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। सो यस सर। हाँ 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 हाँ। नहीं अगर मेडिकेशन टोटली अवॉइड करके इसको करना तो सजेस्ट नहीं करते, बट एजिंग रिलेटेड जो भी रहता है, आई डोंट नो हाउ फार इट विल वर्कआउट है, बट ट्राई तो कर सकते हैं। क्योंकि अभी एज के वजह से कुछ हमारा 40 के बाद अगर स्पेक्ट्स आ रहा है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। हम लोग इससे अगर हील कर सकता है क्या? यस, पॉसिबल है ऐसा वाला। तो बियॉन्ड दिस क्या मेमोरी लॉसेस वगैरह में ट्राई करने में कुछ हर्ज तो नहीं है, बट मैं बोला ना आपको, एक कैंसर पेशेंट ऑलमोस्ट कोमा में चला गया वाला जाके, एंड विथ रेकी हीलिंग शी कम बैक एंड शी हैज रिटन ए बुक, यू कैन हील योर लाइफ। वो बुक लिख के ना पूरा बेस्ट सेलर बुक बन गया वो अमेरिका में। सो आप नेट में सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा, एंड इट इज़ पॉसिबल, कर सकते हैं हीलिंग। सो मेडिसिन के साथ साथ भी कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है तभी भी। और एक एक्सपीरियंस, एक पाँव टूट गया था किसी का वॉकिंग में गिर के, प्लास्टर डाल के इधर ही हमारा हॉस्पिटल में ही डाला था, इधर ही। वो इतना पेन फील किया, नेक्स्ट डे हम लोग उसको देखने गया, मेरा फ्रेंड का वाइफ थी, उसको भी मालूम था रेकी। अरे आप रेकी करता है ना? हाँ। अरे करो, बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, पूरा कल याद नहीं हुआ, देखो बोला। उधर ही बैठे बैठे हम लोग 10-15 मिनट किया होगा। नेक्स्ट डे सुबह आके बोल रहे थे, अरे बाप रे इतना पेन, बिल्कुल पे हमको पता नहीं चला कि इधर मेरा पाँव टूटा है करके। तो मतलब इतना क्या बोन फ्रैक्चर इसमें ना थोड़ा ज़्यादा टाइम करना पड़ता है, आधा घंटा है ऐसा। बट पेन तो पक्का बोलता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत है। इधर ही साइड रिसेंटली मैं चल रहा था, रॉड इधर कट हो गया, इतना खून बह रहा था, ऐसा पकड़ के रखा तो वो खून तो बंद होता है, बंद हो गया उसका, वो सुई जैसा ही। तो उसके बाद तो मैं केरला चला गया था, और शायद ऑलमोस्ट डीप कट था, वो 2-3 mm तक कट था, 1 सेंटीमीटर इतना। जब वो प्लास्टर लगाया था, वो 2-3 दिन के बाद भी वो याद भी नहीं रहा कि वो इधर एक कटा हुआ था। उसके नहाने का टाइम देखा तो इधर कुछ चमड़ा निकला, अरे क्या वो, अरे वो कटा था तब। मतलब वो भूल जाते हैं हम लोग, दर्द तो मालूम नहीं रहता है तो भूल भी जाते हैं। ओके जी, थैंक यू हरिराम जी, थैंक यू फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। हमारी सबकी तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं अक्टूबर मंथ में, हाँ करेंगे, यस, और हम भी किसी सोशल वेलफेयर में हम भी कुछ कर सकें सर, थैंक यू। अक्टूबर में प्लीज। या श्योर, करेंगे बेका। हाँ छुट्टी के दिन ही रखेंगे सर। हाँ दूसरा आप सर ने आज बताया मुझे कि सर ने बुक लिखा आयुर्वेदा पे कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय पे उन्होंने बुक लिखा हुआ है। अष्टांग हृदय ऑलरेडी रिटन बाय भागवत जी है, तो उन्हीं के बुक का कुछ टीका टिप्पणी सर ने किया हुआ है। तो उससे आप स्वस्थ कैसे रहे, आपका जीवन यापन कैसा होना चाहिए, डेली का दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपका रहन सहन, उसके बारे में है। मतलब आपको कोई मेडिसिन लेना नहीं है, जस्ट आपको अपना शेड्यूल ठीक करना है और खाने पीने का ठीक करना है, आप स्वस्थ रहेंगे। उसमें सर ने बताया सर 4 लेक्चर लेंगे, वो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं सर आप प्लीज अक्टूबर में प्लान कीजिए। सब बच्चों के एग्जाम भी हो चुके होंगे और नेक्स्ट वीकेंड। देखिए कुछ भी चीज़ दूसरों को बोलने से पहले हम लोग उसको